بارش کا زور آج ٹوٹے نہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس قدر طوفانی بارش، ایسا لگتا تھا آج یہ بارش شہر کے شہر اجاڑ دے گی، اپنے ساتھ سب بہا کر لے جائے گی۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ہاتھوں میں باہم ہاتھ پھنسائے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہوں میں سلگتا لاوا تھا جو ابھی تک تھما نہ تھا۔ اس کی نظریں بس ایک وجود کی ایک جگہ پر جم کر رہ گئی تھیں، بیڈ پر پڑے اس وجود پر جو بلا وجہ انتقام کی زد میں آ گیا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے ہوئے اس مرد کو اپنے کیے پر ذرا سا افسوس نہ تھا۔ اتنا سا بھی نہیں، ہاں اتنا سا بھی نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ آندھیوں کی زد میں آئے پتے درختوں کے گر کر اپنی ساکھ، اپنی قوت کھو دیتے تھے، پھر وہ کسی کے بھی پیروں تلے آ سکتے ہیں، ایسے ہی روندے جاتے ہیں۔ ان پتوں کی بس یہی اوقات ہوتی ہے، روندے جائیں، اپنی وقت کھو دیں، اپنی حیثیت کھو دیں۔ وہ بے رحمی سے مسکرایا، آنکھوں کا رنگ سرخ سے سیاہ ہونے لگا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، کھڑکیوں سے باہر اتری قنکی کمرے میں اتر آئی تھی۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا جس کی حد نہیں، مگر جسم و جاں میں آگ کے لاوے جلتے رہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھ آیا، بیڈ پر اپنا پاؤں رکھے وہ ذرا سا جھکا، جھک کر ارمیش کے بے ہوش وجود پر نگاہ ڈالی۔ اس کے جسم سے دھیرے دھیرے بھاری کمبل سرکنے لگا۔ وہ گلابی رنگ کے ڈھیلے سے فراک میں ملبوس تھی، ڈھیلی ڈھالی فراک شانوں سے نیچے کھسکنے لگی۔ وہ انگوٹھے سے اس کے جسم پر موجود پڑے داغوں کو سہلانے لگا جو اس کے دیے گئے ہرگز نہ تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا، یہ ظلم اسے ڈھانا چاہیے تھا، یہ بربریت اسے ڈھانی چاہیے تھی۔ وہ سائیڈ میں سے پانی کا جگ اٹھائے پانی ارمیش کے چہرے پر انڈیلنے لگا۔ ٹھنڈا یک پانی ارمیش پر گرتے سے بھگوئے گیا تھا۔ ارمیش نے ہڑبڑاتے میں اپنے سوجے پپوٹے کھول دیے۔ زری خانزادہ کو دیکھتے وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ اس قدر متوہر سا ہو گیا تھا جیسے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ میں سمائے سردی سے کانپتے ٹھٹرنے لگے۔ سراسنگی سے اپنے اوپر جھکے اس مرد کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اس پر اپنی وحشتیں برسائی تھی، درندگی ڈھائی تھی، درندگی، ہاں درندگی، انسانوں کے روپ میں جانور۔ وہ خوف سے بے جان سی تھی، آنکھیں زری خانزادہ پر جم کر رہ گئی تھی جس کی آنکھوں کی صفاقی وقت کے ساتھ گہری ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آن بیٹھا، ارمیش اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما گئی، بڑی بڑی آنکھیں خوف سے مزید بڑی ہو گئی۔ وہ اپنی انگلیوں سے بے حد نرمی سے اس کے گیلے بالوں کی لٹیں سلجھانے لگا۔ ارمیش پر کپ کپی تاری ہوئی، وہ خوف سے سراسیمگی سے کانپتی جا رہی تھی۔ وہ ارمیش کے گالوں پر چپکی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسنے لگا، ارمیش کے اور قریب ہوا۔ ارمیش کی آنکھوں کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ اپنے کزن سے بھی ایسے ہی ڈرتی تھی کیا؟ وہ بھی ایسے ہی چھوتا تھا، وہ بھی ایسے ہی قریب آتا تھا۔ ارمیش کو سمجھ نہیں آیا اس کی آنکھوں کی صفاقی سے خوف کھائی یا اس کے شفاف سوالوں پر۔ کتنی بار وہ تمہارے پاس آیا؟ ایک اور بے رحم سوال۔ ارمیش کا مر جانے کو دل چاہنے لگا۔ یہ موت آخر آتی کیوں نہ تھی؟ اس پوری دنیا میں سیکنڈوں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں، ان میں سے ایک ارمیش کیوں مرتی نہ تھی؟ آنکھیں دہشت سے کھولے ارمیش کی سوچ اسی نقطے پر آ کر مجمد ہو گئی۔ مان لیتا ہوں تمہارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مگر تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کسی رشتہ دار کو بتاتی، محلے میں کسی کو بتاتی، پولیس کے پاس چلی جاتی، یہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو شور مچا دیتی۔ یہ سب کیوں نہیں کیا؟ ارمیش کی جانب تھوڑا سا جھکتے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ کتنا آسان تھا اس مرد اور اس جیسے ہر مرد کے لیے ایسے سوال کرنا، اس طرح کٹہرے میں کھڑے کرنا، کاش شور کرنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، خود کو بچانا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا اس مرد اور اس جیسے ہر مرد کو لگتا تھا۔ ارمیش کو وہ مار یاد آئی، وہ لوہے کی سلاخیں جس سے اس کا بدن داغ دیا گیا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ اسے دردناک یادوں کی دلدل میں نہیں اترنا تھا، مگر یہ شفاق سا جانور بنا مرد اسے اسیوں کے ادوار میں واپس دھکیل رہا تھا۔ اسے واپس نہیں جانا تھا، مگر وہ واپس دردناک لمحے جو کسی گہرے پاتال کی طرح تھے، وہ اتر گئے۔ اس دن بھی تو بارش ایسے ہی ہو رہی تھی۔ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا، وہ بستر پر ایک بے جان لاشے کی طرح پڑی تھی، بخار میں تپتے ہوئے کسی بے جان لاشے کی طرح۔ ہفتوں پہلے ہی تو اسے نوچا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، اس پر بربریت ڈھائی گئی تھی، ایسا ظلم جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے کزن کی بیوی شبانہ آج غصے سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے سے وہ اکیلی ہی پورے گھر کا کام کر رہی تھی،
अरमीश अपनी बेजान लाशे को घसीटते हुए बाहर तक लाई और सहन में पड़े ढेर सारे बर्तन धोने लगी। शबाना की चलती जुबान अब रुक गई थी। वह अरमीश को बर्तन धोते देखते मुतमईन होते आटा गूंदने लगी। बुखार में तपती फूंकती अरमीश कुएं के ठंडे पानी के बर्तन धो रही थी। एक हफ्ते में जो एक वक्त का खाना मिल रहा था वो आज शबाना ने नहीं दिया था। वो बर्तन ना धोती तो एक लुकमा नहीं मिलना था। जिंदा रहने की हर ख्वाहिश तर्क किए वो रोटी के चंद लुकमों के लिए हलकान हो रही थी। वो बर्तन धोकर उठी ही थी, शबाना ने इसके आगे ढेर सारे गंदे कपड़े फेंक दिए। भाभी, कुछ खाने को दे दो पहले। उसने सर उठाते जैसे भीख मांगी थी। खाने को दे दो बस, तुमको बस खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तुमको तो मुफ्त का खाना खाने की आदत हो चला है। वो फुंकारते हुए वहां से चली गई थी। मुफ्त का खाना? अरमीश ढेर सारे गंदे बर्तनों को देखते सोचती रह गई थी। पूरे घर का काम करने के बाद 2 वक्त का बचा कुचा खाना मिलता था। इससे ज्यादा खाना तो वो जानवरों को दे दिया जाता था। वो सर को झुकाए ब्रश से रगड़ रगड़ कर कपड़े धोने लगी। बाबा, बाबा, गीले कपड़ों पर इसके आंसू गिर रहे थे। लबों से आहें निकल रही थी। काश वो भी अपने बाबा के साथ मर जाती। क्या था, अल्लाह इसे भी बाबा के साथ अपने पास बुला लेता। इसका जिंदा रहना तो यूं ही था, इस धरती पर बोझ था। वो रगड़ रगड़ कर कपड़ों का मैल धोती रही। कपड़ों के ढेर में इसके सामने इसके कजिन के कपड़े आए थे। इसे इतनी घिन आई कि इसका जी मत लाने लगा। उपकाइयां करते इसने अपने कजिन के कपड़े तार तार कर दिए। मैली गठड़ी में जितने भी इसके कजिन के कपड़े थे वो पागलों की तरह फाड़ फाड़ कर फेंक रही थी। देसी घी में गुंधी चूरी की खुशबू ने अरमीश की तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो होश में आई थी। बावर्ची खाने से आग का धुआं बाहर तक आ रहा था। ये सूंधी सूंधी खुशबू भी इधर से ही आ रही थी। वो बमुश्किल ही पीढ़ी से उठी। पेट की भूख ने इस कदर मजबूर किया वो बावर्ची खाने की तरफ आ गई थी। बावर्ची खाने में कदम रखते इसने दीवार का एक हाथ से सहारा लिया। अब तो मजीद खड़ा रहने की भी सकत ना थी। बावर्ची खाने के फर्श पर इसके कजिन के 4-5 साला बच्चे टाट बिछाए चूरी खा रहे थे। बावर्ची खाने में इस वक्त शबाना ना थी, वो शायद अपने कमरे में किसी काम से गई थी। अरमीश अपनी कजिन के बच्चों के सामने जा बैठी, चूरी की प्लेट उठा ली। बच्चों ने तहीर से इसे देखा। अरमीश को कभी अपने साथ यूं बैठे नहीं देखा था। इसे इनकी प्लेट में खाने तक की इजाजत ना थी। अरमीश प्लेट से निवाले बनाए खाने लगे। बच्चे गुस्से से इसे देख रहे थे। वो देखते ही देखते प्लेट खत्म कर गई। प्लेट में आखिरी 2-3 निवाले बचे थे। इसके कजन का बेटा इसकी प्लेट छीनने लगा। अरमीश आखिरी 2 निवाले भी इन्हें नहीं देना चाहती थी। पेट की आग आज ज्यादा ही तंग कर रही थी। फिर देसी घी और शक्कर में गूंथी इस रोटी से इसे अपने बाबा की भी महक आ रही थी। वो भी तो गरम गरम घी में रोटी के टुकड़े और शक्कर डालकर गूंथते और फिर अपने हाथों से निवाले बनाए इसे खिलाते थे। खुशियों का दौरानिया इस कदर मुख्तसर क्यों होता है? बाबा ने तो कहा था जिंदगी खूबसूरत है, फिर इसके लिए ये दुनिया इतनी बदसूरत क्यों थी? ना ये दुनिया खूबसूरत थी, ना इसमें दुनिया में रहने वाले इंसान। अरमीज सरमत खान के लिए ही दुनिया ऐसी क्यों थी? क्यों? वो प्लेट हाथ में पकड़े हुए अजियतनाक सोचों में गिरी थी कि इसके कजन के बच्चे ने प्लेट इससे छीननी चाहे। वो आखिरी 2 लुकमे खाना चाहता था मगर अरमीश इसे ये 2 लुकमे देने को तैयार ना थी। आज नहीं, आज नहीं, आज इसे पेट भरकर खाना खाना था। ये दोनों तो रोज खाते थे। अरमीश ने वो आखिरी 2 निवाले भी खा लिए और इस बच्चे को फतहमंदी से देखा जो बेयकीन था। बच्चे ने प्लेट अरमीश के से लेते वो प्लेट अरमीश के सर पर पूरी कुवत से दे मारी। स्टील की प्लेट की जर्ब से अरमीश का सर चकराया था। अरमीश ने सर दोनों हाथों में थामते खूंखार निगाह इस बच्चे पर डाली। आखिर था ना इसके कजन का खून, इस जैसा ही दरिंदा। वो वहशत वो वहशी ज़दा हुई और इस बच्चे पर झपट पड़ी। इस पर थप्पड़ों मुक्कों से पल पड़ी। 1 हफ्ते का लावा था जो अब इस मासूम बच्चे पर निकल रहा था। वो भी किसी के किए कि गुनाह सह रहा था। इस बच्चे की बहन सहमी सी एक तरफ खड़ी थी। अरमीश से इस वक्त खौफ आ रहा था। अरमीश इस 5 साला बच्चे को पीटती जा रही थी। पहली बार किसी पर हाथ उठाया था, पहली बार वो किसी को मार रही थी। और इसका कजन का खून था, गंदा खून। वहशत ही वहशत थी बस। 1 हफ्ता पहले का वो जिल्लत भरा बेदर्द लम्स वो इस बच्चे में उतार देना चाहती थी। वो इस बच्चे को जान से मार देना चाहती थी। बच्चे के दिल खराश चीखों पर शबाना किचन में भागती हुई आई। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। अरमीश इसके बच्चे पर झुकी से मुक्कों बेदरीक थप्पड़ों से मार रही थी। शबाना ने आओ देखा ना ताओ लकड़ी की जलती लकड़ी चूल्हे में से उठाई और अरमीश की कमर पर दे मारी। अब बावर्ची खाने में अरमीश की चीखों की दर्दनाक गूंज थी। मेरे बच्चे को मारोगी?
मेरे बच्चे को मारोगे तुम? हमारा दिया खाकर हमारे टुकड़ों पर पलकर मेरे बच्चे को मारोगे तुम बदजात? शबाना का बस ना चलता था और मीश को आग लगाते और इसे बालों से घसीटते बावर्ची खाने से बाहर ले आए। मार मार कर इसे बेहाल कर दिया। बच्चे सहमे से खड़े थे शबाना के शोर और अरमिश की चीखों पर। मोहल्ले की कुछ औरतें भागती हुई आई थी। उन्होंने शबाना को जबरदस्ती पीछे देखा। ये देखो तुम लोग, इसने मेरे बच्चे का क्या हाल किया। तुम लोगों को ये मासूम लगता था ना, देखो अपना आंखों से। शबाना ने अपना 5 साला बेटा आगे किया जिसके चेहरों पर थप्पड़ों और मुक्कों के बहुत बुरे निशान थे। गर्दन अरमीश के नाखूनों से खरोंची गई थी जहां से खून रिस रहा था। औरतों ने मुंह पर अपना हाथ जमा लिया। अरमीश से इस सब की तवक्को हरगिज ना थी। अरमीश बेहाल सी सहन के फर्श पर बैठी, इसके कपड़े कमर से फट चुके थे। चादर बावर्ची खाने में रह गई थी। वो बिखरे बालों के साथ वहशत ज़दा सी बैठी थी, बेयकीनी से 5 साला बच्चे को सिसकते हुए देख रही थी। इसने कैसे इसे एक मासूम बच्चे को मारा? कैसे आखिर? कैसे? इसने अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब बेगुनाह से लिया। इसके बाबा ने तो कहा था किसी के गुनाहों का बोझ दूसरे पर नहीं डालते, किसी के लिए किए की सजा किसी दूसरे को हरगिज नहीं देते। मुजरिम इस बच्चे का बाप था, ये बच्चा नहीं। सजा भी इस बच्चे के बाप को मिलनी चाहिए थी। मेरे साथ ज्यादती हुआ है भाभी, मुझ पर दरिंदगी ढाई गई, मुझे नोचा खसोटा गया है। वो पूरी कुव्वत से चीख पड़ी थी। औरतों ने मुंह पर हाथ जमा लिया। खुले दरवाजे से इसका कजन जलाल अंदर दाखिल होते जामद हुआ था। फलों के शापर इसके हाथ से फिसल पड़े थे। इतना डराया, इतना धमकाया, फिर भी इस लड़की ने जबान खोल दी। वो आंखों में सुर्खी लिया और मीश के कांपते वजूद को देख रहा था। इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। इस लड़की की इतनी हिम्मत वो अपनी जबान खोले। जलाल बुरी तरह बल खा रहा था। मेरे साथ ये सब करने वाला तुम्हारा शौहर जलाल है। अरमीश दरवाजे के बीचों बीच खड़े जलाल को देखते नफरत से फुकारी। वो शैतान से अब डरने वाली नहीं थी, वो शैतान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने वाली थी। जिस्म और चेहरे पर ताज़ा चोटों के निशान लिए लड़की की आंखों में बस खून था। वो बिखरे बालों, तनफ़ुस ज़दा सांसों और आंखों में दहशत और इंतकाम लिए जलाल खान को देख रही थी। जालिम का जुल्म आज सबके सामने आ गया था। आज जुल्मियत ने मिट जाना था। वो खामोश नहीं रही थी। इसने आवाज उठा ली थी, चुपचाप जुल्म सहने वाला भी इतना ही गुनाहगार होता है जितना जालिम। अरमीश को अपने बाबा का पढ़ाया सबक अजबर था। जुल्म एक दिन मिट जाता है और जालिम का अंजाम दर्दनाक है। इसके बाबा ने जो भी कहा था सच ही कहा होगा। आज जलाल खान को कोड़े पड़ेंगे। इसे इसके जुर्म की सजा देते मार दिया जाएगा। इज्जत तार तार कर देने वाले की सजा इससे कम तो हरगिज नहीं होनी चाहिए। जलाल ने सहन से लोहे की सलाख उठा ली। वो अरमीश की जाने बढ़ा। लोहे की सलाखें अरमीश के जिस्म को दागती चली गई। इसकी दर्दनाक चीखें पहाड़ों से टकराने लगीं। वो जानवरों की तरह से पीटता जा रहा था। पास खड़े इंसानों में से किसी ने अरमीश को बचाया नहीं था। जलाल ने अरमीश को इतना मारा कि इसके जिस्म से खून रिसने लगा था। वो बुलाकर जलाल के पैरों में गिर गई थी। जलाल ने इसे बालों से पकड़ते खड़ा किया। बताओ सबको तुम झूठ कह रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। वो फुकारा था। अरनीश ने सहमते हुए जलाल की आंखों में देखा जहां इसके लिए कड़ी वार्निंग थी। झूठ, झूठ कहा मैंने। अपनी जिंदगी से नफरत करने वाली अरमीश ने जिंदगी को ही चुन लिया था। वो मरना नहीं चाहती थी, वो इतने दर्द से मरना नहीं चाहती थी। जिंदगी मुश्किल थी तो मौत दर्दनाक थी। जलाल ने इसे नफरत से फर्श पर धकेल दिया। शबाना और वहां खड़ी औरतें अरमीश को कोसने देने लगी। 5 वक्त की नमाजी जलाल खान पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। जिस कजन ने सर पर हाथ रखा, जिसने पनाह दी, इसी के सर पर मिट्टी डाल रही थी। वो ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ी रही। झूठ, बाबा का हर लफ्ज झूठ था। होश खोते अरमीश को अपने बाबा से झूठा कोई नहीं लगा था। अरमीश ने जरिक खानजादा को देखते हिचकी ली। मासी के हाल में आना मुश्किल था मगर वो आ चुकी थी। बदबख्ती का दूसरा नाम अरमीश सरमद खान था। वो बदनसीबी लिए इस दुनिया में आई थी, तभी तो आते ही माँ को निगल लिया था। बुरा बख्त इसे तोहफे में जैसे अता किया गया था। वो बेडशीट मुट्ठियों में दबोचे सर को झुका गई थी जैसे जलाल खान के आगे हमेशा झुकाती आई थी। आज सामने बैठे सफाक मर्द के आगे सर झुका दिया। जुल्म की कोई हद नहीं होती और जालिम के आगे बोलने से जबान कुचल दी जाती है। जिंदगी के दिया जाने वाला ये सबक अरमीश सरमद खान को अजबर हो चुका था। वो अरमीश को बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया था। कहाँ कहाँ छुआ इसने। जरिक का हाथ इसे हर जगह से सख्ती से छूने लगा था। वो पता नहीं इसे किस बात की सजा दे रहा था, इसे कौन सा इंतकाम दे रहा था। वो इसकी सुर्ख आंखों में देखती रह गई थी। तुम्हें लगता था तुम अपने इस मासूम चेहरे से मेरे दिल में जगह बना लोगी। वो हंसा था और हंसा क्यों वो समझ ना पाई थी।
तुम इस काबिल नहीं थी मेरे बिस्तर में होती, और अगर काबिल नहीं थी तो बिस्तर में क्यों थी? अरमीश के लबों तक आते आते सवाल दम तोड़ गया था। बोलना इसने छोड़ दिया था, चुप रहना सीख लिया था तो खूबसूरत नहीं हो, बल्कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते बोला, वो खूबसूरत होती भी और लगती भी, अगर कुदरत ने इसे बदबख्ती का रूप दान न दिया किया होता। बदनसीबी का रूप धारे लोग कहाँ खूबसूरत लगते हैं। मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा, जरा तरस नहीं आ रहा। वो इसे बेरहमी से धकेल गया था। बेड से उठते वो तैश और आलम से चक्कर लगाने लगा। धोखा हुआ मेरे साथ, धोखा हुआ। मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में न लाता। जरीक खानजादा हाथ मारते ड्रेसिंग टेबल के सारी चीजें गिरा चुका था। तो जांच पड़ताल कर लेते खान, मुझे खरीदने से पहले। अरमीश की आवाज पर जरीक ने गर्दन तिरछी किए से देखा। निगाहें खोना शाम थी, वो जुबान खोलते अपनी मौत को दावत दे चुकी थी। आप तो औरतों से भी गए गुजरे निकले खान। एक औरत कपड़ा खरीदते हुए भी 100 बार छान पटक करती है, आपने बीवी खरीदते हुए छान पटक नहीं की? चादर उतार कर देख लेते तो आपको पता चलता मुझ पर ढाई जाने वाली दरिंदगी कोई एक बार की ना थी। वो बेड से उठते जरीक खानजादा के मुकाबले लान खड़ी हुई, जैसे मौत देने का अज़म लिए देख रहा था। आपसे निकाह से 4 दिन पहले ही तो इसने मुझे भंबोड़ा था, मुझे इस कदर मारा क्योंकि मैंने इसके मुंह पर थूक दिया था। क्या करूं मैं खान, क्या गलती है मेरी? मेरा हर मट को देख कर जी करता है इसके चेहरे पर थूक दूं। वो जरीक खानजादा के करीब आई, फर्श पर थूका। आपके चेहरे पर भी थूक देती है अगर निगाह के 2 बोल आपने ना पड़े होते। वो जहर खान लहजे में गुर्राए थी, गर्दन अकड़ाए वो उसकी आंखों में देखती, वो अरमिश खान हरगिज ना थी। जो बोलती तो जुबान पर लकवा तारी हो जाता था, जो एक सर्द निगाह पर कांप उठती थी। वो आज आंखों में आंखें डाले गुर्रा रही थी। जरीक खानजादा आईब्रोज गाए से दाद देने वाली निगाहों से देखे गया। वो गर्दन झुकाए हंसा था और हंसता चला गया। अब वो कमरे में चक्कर लगाते गर्दन उठाए ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। ओह गॉड, ओ खुदाया, तुम्हारे मुंह में भी जबान है? अरमीश ने सुलगते हुए गुलाबी होती निगाह इस पर डाली। वो ऊंचे ऊंचे अब कह के लगाने लगा था। वैसे कह के लगाते अजीब लग रहा था। सिर्फ जनीशा शाह ही है, कैसी औरत नहीं, सारी औरतें ही इस जैसी हैं। ओ गॉड, ओ मेरे अल्लाह। वो अपनी थाइस पर हाथ मारते हैरान और परेशान था। अब मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? वो गर्दन ऊंची किए छत पर निगाहें गाड़े हुए था। हरमीश पीछे को होने लगी थी कि इसे जरीक खानजादा से मजीद दहशत महसूस हुई। वो गनपटी उंगली से खुजाते छत को देख रहा था। क्या करूं अल्लाह, इस औरत को आज सजा नहीं दी तो ये भी जनीशा शाह बन जाएगी। माफ कर देना हाँ, जरीक खानजादा कहते गर्दन झुका ली। अरमीश इसके सामने दीवार से आन लगी थी। वो अब मजीद क्या सजा देना चाहता था? वो अरमीश की जानिब चले आया। वो इसके लरजते कांपते बदन को बेड पर धकेल गया। नहीं खान, हिम्मत नहीं। वो पीछे को खिसकने लगी। वो बिना कोई रहम खाए इसकी तरफ बढ़ आया। बोलने से पहले सोच लेती तो तुम पर रहम खा लेता। जनीशा जैसा तुम्हें नहीं बनने दूंगा। वो इसे अपनी बाहों में लिए रुख पलट गया था। मेरा क्या कसूर खान? इसने रोते हुए पूछा। कसूर मुझे तो अपना भी पता नहीं। वो कंबल अपनी और अरमीश पर ओढ़ गया था। कमरा एक बार फिर वहशत और इंतकाम की जद को गूंज में आया था। दूसरी बार इसकी आंख सिगरेट की और जानलेवा सेंट की मिलीजुली महक से खुली थी। कराहते हुए अपने बाएं तरफ बैठे जरीक खानजादा को देखने लगी। वो सिगरेट का टुकड़ा उंगलियों में दबाए गैर मरे नुक्ते पर निगाहें गाड़े हुए था। ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट शाल शानों पर डाले हुए था। गीले बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखरे थे। इसके वजूद से तेज सेंट की महक फूट रही थी। वो इतनी रात गए कहाँ जाने की तैयारी आखिर किए हुए था। अरमीश ने खिड़कियों पर निगाह डाली। तूफानी बारिश में कोई कमी नहीं आई थी। बाहर तो सैलाब आया हुआ था। कपड़े पहनो। वो इस पर कपड़े फेंकते उठ खड़ा हुआ। अरमीश इसके हुक्म पर बमुश्किल उठ बैठी। कांपते हुए कपड़े पहने वो इसकी तरफ आया था। इसे कमर से जकड़े खड़ा किया। वो जरीक खानजादा के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे देखे गई। वो इसे लिए वॉशरूम की जाने बढ़ आया। रोब शावर खोलते इसे गर्म पानी के नीचे खड़ा कर दिया। दीवार से लगे शावर के नीचे भीगते अरमीश जरीक खानजादा को देखे गई, जिसके सामने खड़ा सिगरेट का टोटा अंगूठे और पहली उंगली में जकड़े हुए था। कश लेते वो इसे ही सुर्ख आंखों से देख रहा था। अरमीश में इतनी सकत ना थी वो मजीद खड़ी रह पाती। वो बेदम से जमीन पर बैठती चली गई। गरम गरम पानी की बौछार से गीली करती गई। वो काफी देर तक भीगती रही। वो फिर से इसकी जानिब बढ़ आया। हाथ बढ़ाए से बाजू से जकड़े खड़ा किया। शावर बंद कर दिया।
वो बेहाल से ज़रिक के सीने से आने लगी। वो नागवारी से इसे पीछे कर गया। इसकी ऑफ वाइट शॉल गीली हो गई थी। वो इसे दीवार से लगाए चला गया था। वो बमुश्किल दीवार के सहारे खड़े हुई थी। 2 मिनट बाद वो अंदर आया। सुर्ख रंग की गर्म फ्रॉक और ट्राउजर इसके हाथों में था। महंगा तरीन फ्रॉक जो जनीशा शाह ने दिलवाया था। इसे पहनो और बाहर आओ। वो इसे कपड़े थमाते बाहर चला गया था। अरमीश ने चकराते हुए चारों जानिब देखा और कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहने वो दीवार को थामती बाहर आई। कमरे के वस्त में पड़ी मेज पर खाने की ट्रे पड़ी थी जो हवेली की मुलाजमा अभी अभी रख कर गई थी। खाने को देखते अरमिश का जी मचला था। पेट की दोजक भरने को जी चाहा था। वो जरी खानजादा के सामने जा खड़ी हुई, इसके अगले हुक्म की मुंतजर। खाना खाओ। जरी खानजादा का दिया जाने वाला यह हुक्म अरमिश की बड़ी बड़ी आंखों में तहीर बरपा कर गया था। वो बेयकीनी से इसे देखे गई। मालिक अपने जानवरों पर भी भला कब रहम करता है। खाना खाओ। जरी खानजादा ने दांत पीसते अपने लफ्जों पर जोर दिया। आंखों में बेयकीनी लिए वो इसका खून खौला गई थी। हरमिश खामोशी से खाने की तरफ बढ़ आई, कांपते हाथों से खाना खाने लगी। खाना खत्म करते ही वो पानी का गिलास और हथेली पर कुछ गोलियां लिए इसके सामने आन खड़ा हुआ। हरमिश ने इस बार भी कदरे हैरत से इसे देखा। इस मर्द की इतनी नरमी से हजम ना हुई थी। वो अपनी हथेली अरमीश के सामने फैला गया था। दर्द और बुखार की दवाई है। वो थोड़ा सा झुके इसकी आंखों में देखते बोला। अरमीश के कांपते जिस्म में तेजी आई। पहले कब किसी ने जख्म देकर यूं मरहम रखा था, यूं दवा दी थी। ये बेरहमी की इंतहा थी, क्योंकि ये रहम वो सह नहीं पा रही थी। बाबा। अरमीश के लबों से एक लफ्ज अदा हुआ, फकत एक लफ्ज। वो टूट कर बिखर गई थी। बाबा। वो अब चीख चीख कर रोते जरी खानजादा की कलाई थाम गई थी। जरी खानजादा ने गोलियां इसके मुंह में डालते पानी का गिलास इसके लबों से लगा दिया। वो कांपती रोती इसकी शॉल का एक कोना जकड़े हुए थी, जैसे वो साथ छोड़ देगा तो वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। दांत देने के बाद वो अलमारी से इसके शूज निकालते ले आया। वो अरमिश के कदमों में वो शूज रख दिए। वो आंखों में अनगिनत सवाल लिए इसे देख रही थी। पहनो। वो कहते अलमारी की जानिब बढ़ गया। सूटकेस निकालते बेड तक ले आया और अब इसमें अरमीश के कपड़े डालने लगा। अरमीश खड़ी हो गई। चेहरा जर्द हो गया। मौत तो जैसे अब हुई थी। जो जो जनीशा ने दिलवाया था हर कपड़ा इस सूटकेस में डाल दिया। जर्सियां, स्वेटर, सब कुछ। सोने का वो भारी सेट और कड़े भी। सूटकेस बंद करते वो अरमीश की तरफ आया। इसे सुर्ख रंग की गरम शॉल दी। अरमीश ने वो शॉल खुद पर ओढ़ ली। अब इसके गीले बाल भी इसमें छुप गए थे। मुजस्सम बनी दहशत जदा सी लड़की की आंखों में अब भी सवाल थे, खौफ की परछाइयां थी। चलो तुम्हें तुम्हारे कजन के घर छोड़ाऊं। वो सफाकी से बोलते इसकी कलाई जकड़ गया था। हरमीश का वजूद पसीने से निचड़ा। रंगत मुर्दे जैसी हो गई। ये मसीहाई, ये नरमी इसके लिए थी ताकि वो इस पर मजीद जुल्म ढा सके। ज़िबा किए जानवर पर भी तो पहले प्यार से हाथ फेरा जाता है। इसे तो ज़िबा करने से पहले किया जाने वाला प्यार था। वो बेजान से सोफे पर गिर गई। वो बदबख्त थी, मगर इस कदर बदबख्त जहन्नुम से एक बार वापसी हो जाए तो फिर जहन्नुम तो नहीं मिलती। सारी सजाएं सह ली, बिना किसी पादाश के हर गुनाह का अजाब भुगत लिया। फिर वापसी क्यों? इसी जहन्नुम में क्यों? आखिर क्यों? अरमिश ने सर उठाया। इस बेरहम मर्द को देखा। वो इसे ही देख रहा था, आंखों में हर रहम मफकूद, हर जज्बा स्या। वो इसे राख कर देना चाहता था। वो इसे सजा देना चाहता था। अरमीर सोफे से उठते इसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए खान, ये जुल्म नहीं। वो पंचों के बल इसके सामने आन बैठा। यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारा अंजाम, यही तुम्हारी औकात। वो आंखों में सर्द मेहरी लिए घुर्राया। मैं हर सजा सहूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी। मैं अब कभी मुंह नहीं खोलूंगी। मुझे हवेली के किसी कोने में डाल दो खान, मैं सारी हवेली का काम करूंगी। जो आप कहेंगे वही करूंगी। मुझे बस इस जहन्नुम में मत भेजो। वो उसके पैरों से लिपटी गिड़गिड़ा रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी। वो चाहता था वो मिट्टी हो जाए, वो मिट्टी हो जाएगी। वो चाहता था वो फना हो जाए, वो फना हो जाएगी। वो चाहता था वो नजर ना आए, वो अदम हो जाएगी। मगर ये सजा नहीं। हाँ, ये सजा नहीं, हरगिज नहीं। जरीके से शानों से जकड़े खड़ा कर गया था। सर से फिसलती शाल इसे अच्छी तरह से सर पर ओढ़ा दी। मर्द बना खड़ी लड़की का हाथ पकड़े वो कमरे से निकल आया था।
सड़क पर दौड़ती गाड़ी जगह जगह रुकती गई, हर तरफ पानी ही पानी था। जगह जगह दरख्त टुकड़े पड़े थे, रास्ते बंद थे, रात काली स्याह थी। तूफान गहरा, मगर इस मर्द की जिद के आगे आज सब हीज था। गाड़ी जब जब रुकती, इस बेरहम मर्द के पहलू में बैठी लड़की के लबों पर दुआएं जारी होने लगती। जितनी कुरानी आयात आती थी वो पढ़ने लगती, सारे रास्ते पढ़ती आई थी। वो इस मर्द का दिल मोम होने की दुआएं मांगती, अपनी मौत की दुआएं मांगती। हर आस जैसे टूटी थी, हर दुआ जैसे रद्द थी। वो गाड़ी से निकल गया आया और रास्ते में पड़े दरख्त की टहनियाँ तने अपने हाथों से पीछे करने लगा। अरमीश विंड स्क्रीन से इस मर्द को देख रही थी जो पूरी कुंवर लगाए रास्ते में आई, हर बंदिश को हटाने की कोशिश कर रहा था। अरमीश इसे गुलाबी भीगी आंखों से देखे गई। बारिश में भीगता, दांत पर दांत जमाए, वो अरमीश जैसे मनहूस साए को खुद से जैसे दूर कर देना चाहता था। हाँ, वो मनहूस थी, वो कमबख्त थी, वो बदबख्त थी। रमेश इसे देखे गई, वो दरख्त हटाने में कामयाब हो गया था। वो रोते रोते हंस पड़ी। खुदा को आगे कब इस पर रहम आया था जो आ जाता। वो गीली शाल शानों पर झटकते गाड़ी में आन बैठा था। गाड़ी एक बार फिर से चलने लगी थी। अरमीश को ज़रीक खानजादा के जिस्म से आती खुशबू जलाने लगी। गाड़ी अब टूटी फूटी छोटी छोटी सड़कों पर आ गई थी। जहन्नुम अब करीब था। अरमीश का वजूद मजीद कांपने लगा। गाड़ी आखिरकार रुक गई। अरमीश ने सहमते हुए ज़रीक खानजादा को देखा। इधर ही लाकर फेंका तो निकाला क्यों था इस कब्र से? इस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में जख्मी सा सवाल था। ज़रीक खानजादा ने डैशबोर्ड से ड्रॉर से ₹1,00,000 वाली नोटों की 2 गड्डियां निकाल कर अरमीश की गोद में रख दी। तुम्हारे लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, वो विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए कह रहा था। अरमीश ने नोटों की गड्डी देखी, वो जख्मी सा मुस्कुराई। इसे खाली कब्र में थोड़ी उतारा जा रहा था। पैसे और गहनों समेत ये मर्द दफना रहा था। वो पैसे पकड़े गाड़ी से उतर आई। अपनी जंग से खुद लड़नी थी, शायद ये पैसे काम आ जाए। वो भी गाड़ी से उतर आया, डिग्गी से सूटकेस निकाला। सूटकेस घसीटते वो अरमीश के साथ आगे बढ़ने लगा। अरमीश ने मुड़कर ज़रीक खानजादा को देखा। सूटकेस ज़रीक खानजादा से ले लिया। मेरी कब्र में अब क्या अंदर तक उतरोगे? वो रोते रोते हंसी थी। मत अंदर झांकना, काली स्याही है, घुटन तारीकी है, बस देखोगे तो दम घुट जाएगा। वो सूटकेस का हैंडल घसीटते आगे बढ़ गई थी। लकड़ी का दरवाजा वो जोर जोर से खटखटाने लगी। जरी कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर पलट आया था। गाड़ी में बैठते, गाड़ी स्टार्ट करते वापस मोड़ ली। जनीशा शाह कबीर खान की हवेली का बड़ा सा दाखिली लकड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो एक लहजा काम कर रह गई थी। इतने सन्नाटे, इतनी दहशत इस हवेली में उतरी हुई थी, पूछो मत। स्याह दीवारों पर वहशत की परछाइयां लहरा रही थी। वो दीवारों पर नस्ब बोर्ड्स की जानिब आए, एक एक करके बत्तियां जलाने लगी। पूरी हवेली रोशन हुई, मगर फिर भी इस हवेली से खौफ आ रहा था। ललिमा खानम पता नहीं कहाँ चली गई, वापस इस हवेली में नहीं लौटी थी। यहाँ अब सब तारीख था। बाबा, बूढ़े, लाला, जनीशा लाउंज की ठंडी जमीन पर बैठे इन्हें पुकारने लगे। घुटनों में दिए सर्द दिए जनीशा शाह नकाहत सर्दी से कांपती जा रही थी। जाने कितने घंटे बीत गए थे, वो यूं ही बैठी थी। आज की रात ऐसे ही गुजरनी थी, अपनी ही आग में जलना था। हवेली में भारी कदमों की धमक पर जनीशा ने सर उठाया। सर सवालिया निगाहें अपनी पर्सनल गार्ड्स पर और इन कुरैशी पर गाड़ दी। जमीन से उठते वो लाउंज में पड़ी आरामदाह चमड़े की रॉकिंग चेयर पर आन बैठी थी। वो जनीशा शाह थी, किसी के सामने टूटकर बिखर नहीं सकती थी। अंदर क्यों आए हो जारून? जनीशा ने कुर्सी पर झूलते हुए आईब्रो उठाते पूछा। 45 साला जारान कुरैशी, जो पिछले 18 सालों से इसके साथ था, सबके काबिल एतमाद गार्ड, स्याह सफेद 3 पीस सूट पहने हुए, वो वर्जिशी जिस्म का मालिक था। सांवली रंगत, नकुश, बेहद पुरकशिश, चेहरे पर बला की सख्ती हमा वक्त रहती थी। इस वक्त वो चेहरे पर परेशानी लिए खड़ा था। इसकी आंखों में जनीशा शाह के लिए तफक्कुर था। आपको देखना था मैडम, मुझे आप ठीक नहीं लग रही। लहजे में अब भी परेशानी पहना थी। मैं कब तुम्हें ठीक लगती हूँ? कुर्सी पर झूलते वो हंसी थी। जारून कुरैशी इसे तवक्कुर से देखे गया। क्या वक्त हो रहा है जारून? जनीशा ने आंखें मूंदे पूछा। मैडम, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। टोरंटो में तो शाम हो गई होगी ना? जनीशा ने आंखें खोले। जारून को ताईदी निगाहों से देखा।
زارون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون ہے تمہارے پاس؟ دو مجھے۔ زنیشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زارون نے تابعداری سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے فون نکالتے زنیشا کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ اب کانٹیکٹ لسٹ میں سے درخزی کا نمبر نکالے ڈائل کر رہی تھی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں کل سارا دن تمہیں فون کرتا رہا، تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ درخزی فون پر گرجا تھا۔ لالا میں زنیشا۔ وہ اپنی بھرائی آواز پر قابو نہ پا سکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ زنیشا کی بھیگی آواز نے اسے ٹورنٹو کی سرد شام کی طرح جلا دیا تھا۔ وہ ٹورنٹو کے ایک بھیگتی سڑک پر ایک شرٹ کے نیچے کھڑا تھا۔ جینز کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ایئرپورٹ کانوں سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ کتنی دیر کچھ بول نہ سکا تھا۔ وہ بس بھیگی سڑک کو دیکھتا رہا۔ اس کی پرورش رو رہی تھی اور وہ اس سے اتنی دور تھا۔ اس قدر فاصلے پر تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں زخمی پن اتر آیا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے دیوار سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ شرٹ کا سایہ اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا بھائی ہوتے اپنی بہن کو اپنا سایہ نہ دے سکا تھا۔ یہ شرٹ، یہ حفاظتی سایہ اس کے لیے نہ تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ کرف سے آنکھیں موند لی، گردن اوپر کو اٹھا لی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کس قدر مشکل سے درخزی خانزادہ نے پوچھا تھا۔ اگر وہ کہتی وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے اس کے پاس آئے گا؟ اگر پرویش نے کہہ دیا لالا تمہاری ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہوں لالا۔ زنیشا شاہ نے وہی کہہ دیا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ہر اس آواز نے سماعتیں بند کر لی جو اس کی بہن کی دبی دبی سسکیوں میں دبی تھی۔ وہ سسکے نہ بھی وہ سسکیاں سن سکتا تھا۔ وہ کہے نہ بھی وہ انکہی سن سکتا تھا۔ وہ اپنا درد چھپا لے، وہ اپنے اندر تک اترتا گہرا درد محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اسی طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ لالا میرا فون خراب ہو گیا ہے۔ زنیشا نے جاندار آواز میں جھوٹ گھڑا۔ فون زرق کی حویلی میں رہ گیا تھا۔ وہ کیسے بتاتی؟ سب کچھ، سارے رشتے چھوٹ گئے، سب ختم ہو گیا۔ ایک بھائی تھا جس پر وہ ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ساری عمر اکیلے زخم کھائے۔ اب بھی وہ اپنے زخموں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ ادھر رات کے 2 بج رہے ہیں۔ پری، تو یہ زارون کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اور زرق کہاں ہے؟ درخزی کا لہجہ سرد ہوا۔ زنیشا نے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی آخر؟ زارون کا فون کیوں لیا؟ وہ بھی اس وقت لیا، کیا پوچھ رہا ہوگا؟ وہ فون پر اب چلا رہا تھا۔ غیرت میراث تھی، اس لیے فون بھڑک اٹھا تھا۔ وہ لالا اس وقت کیا؟ تم زنیشا شاہ نہیں، زرق خانزادہ کی بیوی ہو۔ اگر اس کی حویلی چلی گئی تھی تو بیوی بن کر رہو۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا اچھی طرح کہ ایک بیوی کو کیسے رہنا چاہیے۔ وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ جی، اچھی طرح سمجھایا تھا۔ میں ہاتھ باندھے زرق کے سامنے کھڑی رہوں، یہی چاہتے ہیں آپ؟ بکواس بند کرو اپنی۔ بڑا بھائی ہو تمہارا، تمیز سے بات تمہیں کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ درشتگی سے زنیشا کی بات کاٹ گیا تھا۔ زنیشا کو جیسے رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اب وہ اس کی ڈانٹ کو جواز بنا کر کھل کر رو سکتی تھی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کب کہا کہ تم اس کے آگے ہاتھ جوڑے باندھی رہو؟ میں تو کہتا ہوں وہ تمہیں کچھ بھی کہے، اسے اپنے گاج کے ہاتھوں پٹواؤ۔ وہ زنیشا کے رونے پر نرم ہوا، لہجے میں بشاشیت پیدا کی۔ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ان گاج کو بس زرق کو مارنے کے لیے حد تک رکھو، جب کچھ کہے ایک آدھ ہڈی توڑوا دو۔ زنیشا روتے روتے ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ اب بتاؤ پری، زارون کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ واپس اصل مدعے پر آیا تھا۔ زارون کا فون اس وقت زنیشا کے پاس کیوں ہے؟ درخزی خانزادہ کو بری طرح کھٹک رہا تھا۔ میرا موبائل خراب ہو گیا، میں نے زارون سے لے لیا، میرا ہی دیا ہوا تھا، اس سے لے لیا، اور وہ لے لے گا، کم تنخواہ نہیں دیتی اسے۔ آپ فکر نہ کریں۔ زنیشا کے پاس کھڑے زارون کے چہرے پر سایہ لہرایا، پیشانی پر سلوٹیں پڑیں۔ زرق آج اسلام آباد گیا ہے، اس کا کوئی ایونٹ تھا، میں نہیں گئی کیونکہ… زنیشا نے ایک لمحے کا توقف کیا، پاس کھڑے زارون کو ایک نظر دیکھا۔ میں ماں بننے والی ہوں لالا، زنیشا نے بھیگی آواز میں بتایا۔ وہ درخزی خانزادہ سے یہ شیئر کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، کسی اپنے کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ آج تو دل پھٹ رہا تھا، جیسے رونے کا بہانہ چاہیے تھا، ایسے خوش ہونے کا بھی بہانہ چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہی ہو پری؟ وہ اس قدر خوش ہوا تھا جس کی حد نہیں۔ اب برستی بارش چپ نہیں رہی تھی، ٹورنٹو کی ہواؤں نے اس لمحے جلانا بند کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں لالا، اب سب ٹھیک ہونے والا ہے، سب کچھ پری برسی کے مطابق، اب سب کچھ بدلنے والا ہے، اب منزل قریب ہے، بہت قریب۔ زنیشا شاہ کو اب زندگی ملنے والی ہے۔
कौन सी मंजिल परी, कौन सी जिंदगी? वो उलझन का शिकार हुआ। मेरे बच्चे का नाम आप रखेंगे लाला, आपको जल्द आना होगा। वो बात बदल गई। मैं ही रखूंगा और मैं जल्द आ रहा हूँ, वो मजबूती से कहते फोन बंद कर गया था। टोरंटो की सर्द भीगती शाम में खड़ा वो गर्वजदा लगता था। जीन्स पर सफेद रंग के हाई नेक पर मैरून रंग की लेदर जैकेट पहने हुए उसकी आंखों में गहरी यासीर थे। ये मुल्क यहाँ के लोगों अजनबी थे, जैसे ये जलाती हुई अजनबी हवाएं बस रूह को जलाती थी, दागती थी। वो यहाँ क्यों था आखिर, किस लिए था आखिर? इसकी मोरे हवेली में नहीं थी, इसकी बहन को शायद इसकी जरूरत थी, और वो यहाँ धक्के खा रहा था। वो टोरंटो की सड़कों की खाक छान रहा था। ये शहर इसका ना था, यहाँ के लोग इसके ना थे, इसलिए अब इसकी बीवी बच्चा भी यहाँ नहीं रहेंगे। वो माने या ना माने, इसके साथ अब वापस आना ही था। अब वो अपनी सरसों आंखें सामने बने अपार्टमेंट पर गाड़ क्या था। अनाया पाशा को दी जाने वाली मोहलत अब खत्म थी। उसकी बीवी थी, इसके बच्चे की माँ, से हर हाल में इसके साथ वापस जाना था। वो अपनी मोरे बहन को मजीद तन्हा नहीं छोड़ सकता था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।